Greetings of the day, student. So we are moving ahead with our chapter discussion of managing input-output. Last time we discussed printing of integer numbers, right? So just a second. Yeah, this one. That how do we print integer numbers in a simple format, then right align format or left align format. Okay. So this is how integer numbers are printed. Today we are going to discuss about real numbers. I have already told you that real numbers is one kind of float numbers or the numbers that fall into a mathematical set R. Okay, so then in integer numbers we just were specifying a simple integer before the percentage d, but in real number we specify 2 digits dot n dot m. Okay, no need to put the brackets between before them. I'll show you that in an example, that if you want to print, let's say, percentage 5d, percentage 5.2d. This simply means that you want to create total 5-digit space including a dot, and then you want to print 2 digit after the point. Okay, and n specifies minimum field width. Okay, how much you want to give to the width, and then output the decimal digit after that. So m is the decimal point of view. And if you look at these both sentences, this one and this one, they both are same, but actually here it should be E instead of F. Okay, so that is my mistake. Percentage E is also used for printing the float or real numbers, and percentage F is also used for printing the float or real numbers. These are exponential kind of numbers, as we had discussed earlier. We will see this. Okay, and we can decide width and precision at the runtime. N is the total width that you need, including a floating point. Fine, and width and precision you can decide at the runtime by just specifying with the printf arguments width and precision. These both are variable names. As you can see, इसको हम variable name रख सकते हैं, program के हिसाब से change कर सकते हैं. That can be a very interesting property if you are printing some number. Okay, and then finally you put the number. So नंबर लास्ट में आएगा, पहले टोटल विड्थ आएगी, फिर प्रिसीजन आएगा और फिर नंबर आएगा. ये क्या बात कर रहे हैं, कितनी जगह रोकते हैं इस तरीके से. विल जस्ट शिफ्ट द कोड ब्लॉक्स एग्जांपल. ठीक है. Okay, so here we are with the example. I hope the things are visible. Fine. So मैंने एक सिंपल फ्लोट नंबर डिफाइन किया है. ये इंटीजर मेन है, फ्लोट नंबर है 77.8965. ओके, ये मेरा नंबर है, तो मैंने उसको डिफरेंट तरीके से प्रिंट किया है. फाइन. इंटीजर विड्थ इज इक्वल टू 10 रखी है, प्रिसीजन 6 रखा है. अब मैं जैसे ही इसको आउटपुट करता हूँ, रन करता हूँ, मुझे डिफरेंट चीजें आउटपुट में मिलेंगी अपने स्टेटमेंट के प्रिंटिंग के हिसाब से. 7.4f मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो 7.4f का मतलब क्या होता है कि टोटल 7 स्पेस क्रिएट करो इंक्लूडिंग डॉट. सो यहाँ पे टोटल 7 स्पेसेस क्रिएटेड है. 1 2, फॉलो माय कर्सर. ओके, थर्ड इज अ डॉट, फोर्थ वन इज 8, फिफ्थ वन इज 9, सिक्स वन इज 6 एंड देन 5. ठीक है, टोटल 7 स्पेसेस क्रिएटेड है ऑलरेडी. And if you look at the next printf statement, we just have percentage f. So if you have only percentage f, it has to print the whole number. और point के बाद कितने precision, कितना precision allowed है, 6 digit तक. So 8965 तो हमने लिखा हुआ है, डबल जीरोस तो अपने हिसाब से ऐड किया है, क्योंकि 6 digit का precision है वो by default होता है if you don't specify anything. Fine. Then we have percentage 7.2f. 7.2f का मतलब है टोटल 7 डिजिट की स्पेस क्रिएट करेगा. 1 और 2 डिजिट आगे छूट रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाली जगह छूट रही है. देन 2 डिजिट, देन डॉट एंड देन 90. टोटल गिनेंगे तो 7 हो जाएगा. 2 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट इस तरफ, 4, 1 इज अ डॉट और 2 डिजिट यहाँ पे, 7. ओके, सो डॉट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनसाइड अ टोटल विड्थ. आपको जितनी विड्थ चाहिए उसमें डॉट को इंक्लूड करना है, क्योंकि डॉट भी एक डिजिट की जितनी स्पेस रोकेगी, एक पिक्सल रोकेगा. ये सारे पिक्सल कहलाते हैं, जो एक डिजिट एक जगह में जो स्पेस रोकता है. देन वी नीड टू मैनेज. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. सो अगर हम टोटल 7.2f लिखेंगे तो डॉट के बाद कितने प्रिंट करने वो हमने यहाँ पे लिखे हुए कि डॉट के बाद इस तरीके से हम 2 नंबर ही प्रिंट करेंगे. और टोटल कितनी जगह क्रिएट करनी है वो हम आगे लिखेंगे. ओके, सो 7.2f का मतलब ऐसा नहीं है कि डॉट से पहले कितने प्रिंट करने हैं और बाद में कितने प्रिंट करने हैं. सो n डॉट m का मतलब उस तरीके से नहीं होता. n डॉट m का टोटल मतलब होता है कि n टोटल नंबर स्पेस क्रिएट करो इंक्लूडिंग डॉट, और
उसके बाद कितने प्रिंट करने हैं वो सिर्फ हम डॉट के बाद लिखेंगे, डॉट एम, यानी डॉट के बाद एम नंबर्स प्रिंट करो, ठीक है। -7.2f जैसे कि हमें पता है वो लेफ्ट अलाइन लिखेगा, जैसे पहले आगे जगह छूट रही थी ओनली 7.2f में, -7.2f में पीछे जगह छूटेगी, तो इसके पीछे 2 डिजिट है वो स्पेस है, हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है इसीलिए मैं नहीं दिख रहा। इफ आई जस्ट राइट डाउन हियर लेट्स से ABC, तो आपको दिखेगा वो नंबर और वो नंबर और ABC के बीच में एज यू कैन सी तो स्पेस है। ओके, सो -2 मतलब लेफ्ट अलाइंड है पर स्टिल उसने जगह 7 डिजिट की ही छोड़ी है। ओके, एंड 0.07.2f मतलब आगे 0 प्रिसीड करेगा, जैसे कि यहाँ पे आगे 2 जीरो आगे जगह छूट रही थी तो उसकी जगह पे 0 प्रिसीड हो गए। देन वी हैव डायनेमिक विथ। डायनेमिक विथ का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। वेरिएबल्स का मतलब है सिंपली हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रिसीजन में स्पेसिफाई कर रहे हैं कुछ तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पर %*.*f मतलब मैंने कोई नंबर नहीं लिखे हैं, नंबर की जगह पे स्टार लिखे हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, विड्थ और प्रिसीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे विड्थ से 10 मतलब टोटल 10 डिजिट की स्पेस छोड़नी है, और प्रिसीजन 6 यानी मुझे पॉइंट के बाद 6 नंबर्स चाहिए, ठीक है। सो 77.896500 आप जितनी भी स्पेस रखना चाहें उतने रख सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, या वी हैव आउटपुट हियर, फाइन। सो हमने डायनेमिक जो हमारा प्रिंटिंग था उसका डिस्कशन कर लिया। देन आई हैव लेफ्ट कपल ऑफ लाइंस स्पेस एंड देन वी आर प्रिंटिंग 10.2e। ई एक साइंटिफिक नोटेशन है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर सेम नंबर हमें प्रिंट करना है 77.8965, तो मैं क्या करूंगा 7.79 इंटू e⁻+001, ठीक है। इसमें ज्यादा डिजिट्स हमें चाहिए, ओके, इसीलिए मैं इसको 10.2e लिखा हुआ है। 7.79e इसका मतलब होता है कि उसने इसको नंबर को प्रिसाइज कर दिया है, उसकी डिटेल्स हैं वो छूट गई हैं। सो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप नंबर को %f में प्रिंट करेंगे। डिटेल्स कैसे छूट गई हैं, जैसे कि इसने नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोटल 3 डिजिट नंबर ही है मेरा 7.79, बात खत्म हो गई। यहाँ पे मेरा नंबर कैसे था 77.8965, टोटल मेरे 6 डिजिट काम के थे, उसने यहाँ पे मेरे काम के 3 डिजिट ही रखे हैं। नंबर सही है क्योंकि ये e⁻+1 है, e⁻+1 का मतलब होता है 77.9, 10⁻1 होता है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे भी e⁻1 मतलब +1। सो अगर हमें ज्यादा पॉइंट के पीछे डिजिट्स चाहिए जो हमारे लिए काम के हैं, तो हम क्या लिखेंगे 12.4e। तो पॉइंट के बाद मुझे 4 डिजिट चाहिए, तो 7.7986 तक पहुंच गए। स्टिल मेरा एक नंबर छूट रहा है यहाँ पे 5, एक डिजिट छूट रहा है 5, ठीक है। नंबर ये दोनों सेम ही है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं पता चलता है तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑन द इंटरनेट। इट्स अ वेरी सिंपल नोटेशन, इट्स जस्ट 10 रेज टू समथिंग, ओके, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, नॉट गोइंग इनटू डिटेल, फाइन। एंड देन फाइनली जी एक ऐसा नोटेशन है जो %e और f के सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, ऑल्सो यूज टू प्रिंट द फ्लोट नंबर्स, फ्लोट नंबर प्रिंट करने के लिए यूज होता है। पर कब यूज होता है, जब आपका कंफ्यूजन है कि आपको पता नहीं है कि नंबर की डिटेल जरूरी है, जैसे कि 77.8965 या फिर से 77.9 भी चलेगा, ओके। तो अब आप क्या यूज कर सकते हैं %g, तो उसका जो शॉर्टर फॉर्मेट होगा वो %g आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में %g प्रिंट किया हुआ है, तो उसने क्या किया 77.8965, वो उसका शॉर्टर वर्जन है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ई वाला जो पार्ट है, ई वाले पार्ट में ज्यादा नंबर ऑक्यूपाई हो रही है, ज्यादा स्क्रीन स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, इससे ज्यादा 77.8965 है वो शॉर्टर नंबर है, तो उसके लिए वो उस तरीके से प्रिंट करेगा। मतलब आपका जो भी नंबर शॉर्ट होगा वो आपको जी प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सो जी इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। आई होप दिस क्लियर, जस्ट शिफ्ट इनटू आवर पीपीटी, फाइन। सो हमने ये चीजें डिस्कस कर ली। %n.m मैंने ब्रैकेट्स नहीं यूज किए थे, आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन *.* डायनेमिक विड्थ वो भी हमने दे दिया है। आउटपुट फॉर्मेट कोड्स हमें पता ही है, वी हैव ऑलरेडी यूज दिस, क्योंकि स्कैनएफ में हमने डिस्कस किए थे ये सारे, और फ्लैग्स भी डिस्कस किए थे। -to लेफ्ट जस्टिफाई, प्लस तो हम यूज करते नहीं है, वो राइट जस्टिफाई ऑलरेडी हो जाता है। देन वी यूज स्पेस, कोई साइन नहीं यूज करनी है तो 0 भी यूज कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर के लिए हैश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट हाउ कैन वी शिफ्ट बिटवीन फॉर्मेट कोड्स एंड फ्लैग्स। Okay, so this is a string IO. So final topic discussion before we wrap up this chapter. I'll just take one example and then we will wrap up the chapter. So string के लिए हम %s भी use कर सकते हैं for scanning the string, और %any number c, okay, कितने कैरेक्टर स्ट्रिंग का स्कैन करने वो भी लिख सकते हैं।
वी डोंट यूज एम्परसेंड साइन देयर एंड वी डोंट यूज एम्परसेंड साइन हियर इधर। हम यहाँ पे दो फंक्शन लेके आए हैं, गेट एस एंड पुट एस, सिंपल स्कैनफ और प्रिंटफ की तरह। जैसे कि फंक्शन के नाम डिस्क्राइब करते हैं इटसेल्फ। गेट एस स्ट्रिंग को लेने के लिए यूज होता है और पुट एस स्ट्रिंग को स्क्रीन पे पुट करने के लिए यूज होता है। अंदर सिर्फ स्क्रीन वेरिएबल लिखते हैं, नथिंग एल्स, नो फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। सो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को स्कैन और प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट स्विच टू द एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम नाम की एक स्ट्रिंग ली है, एंटर योर नेम, मैं स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन प्रिंट कर रहा हूँ। सो गेट एस में कोई इंस्ट्रक्शन प्रिंट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ऊपर printf से इंस्ट्रक्शन प्रिंट की है। देन आई एम जस्ट गेट एस फंक्शन यूजिंग द गेट एस फंक्शन एंड इनसाइड दैट वेरिएबल नेम, मेरे वेरिएबल नेम का नाम क्या है, नेम। देन printf नेम एंटर्ड, जो भी नेम एंटर किया है वो मैं स्क्रीन पे वापस पुट कर रहा हूँ। सो पुट एस नेम, ठीक है। इफ आई जस्ट रन दिस, इट विल आस्क मी फॉर अ नेम, फाइन, इट विल आस्क मी फॉर अ नेम। लेट्स से माय नेम इज अनिल कुमार, ओके। सो वो नेम एंटर्ड अनिल कुमार, ओके। यहाँ पे स्पेस यूज करना अलाउड है। जब हम परसेंटेज एस स्कैनएफ में यूज कर रहे थे तब वो स्पेस डेलिमिनेटेड नेम्स नहीं ले रहा था, ठीक है। सो यू कैन यूज गेट एस फॉर दैट। और ये नंबर एक प्रिंटेड आ रहा है, वो क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से इससे पहले हम नंबर को देखेंगे, दैट इज नंबर इज 88। नंबर कौन सा है, 88। और मैंने परसेंटेज डी की जगह पे क्या लिखा है, परसेंटेज ओ। सो अगर आपको किसी नंबर को डायरेक्टली ऑक्टल में प्रिंट करना है तो आप परसेंटेज ओ यूज कर सकते हैं। सो 88 नंबर है, वो परसेंटेज ओ लिख के प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, 130। आई डोंट नो इफ यू नो द ऑक्टल कन्वर्जन, बट अगर आपको इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 88 का ऑक्टल क्या होगा, 130। सो इट विल जस्ट प्रिंट योर नंबर यूजिंग ऑक्टल डिजिट्स, ओके। सो ऑक्टल में अगर आप किसी नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो विल यूज परसेंटेज ओ। सिमिलरली परसेंटेज एक्स इज यूज फॉर हेक्साडेसिमल नंबर। सो 88 को अगर मुझे हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना है, just still asking for my name, I'll just write down A, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल 88 का क्या होगा, 58, ओके। सो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल वो नंबर सिस्टम्स है। जैसे पता है हमें बाइनरी में दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1, दो डिजिट्स होते हैं, उसके यूज से नंबर प्रिंट होते हैं सारे। उस तरीके से ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7 तक नंबर होते हैं और हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक होते हैं। पर 0 से 9 तक नॉर्मल डिजिट्स होते हैं और 10, 11, 12 हेक्साडेसिमल में नहीं आते हैं। वहाँ पे क्या आता है, A B C D E F, उस तरीके से आते हैं, ठीक है। सो 88 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, 58। आई जस्ट वांट टू हैव अ नंबर दैट टेल्स मी कि 112 आई गेस, जिसमें हमें हेक्साडेसिमल नंबर्स कुछ दिखने मिले, ठीक है। एंटर नेम A, I'm getting 70 for 112. I'll just enter 116 and check. Name is A. 74 126 7E. ओके, सो 126 के लिए जैसे आप देख सकते हैं हमें 7E नाम का नंबर भी मिल रहा है फॉर परसेंटेज एक्स, ओके। इस तरीके के डिजिट्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स में, फाइन। सो हाउ डू वी कन्वर्ट दैट और हाउ डू वी डू दैट, आई विल जस्ट गिव यू क्विक एग्जांपल, ओके। सो हम किसी भी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नंबर इज 100 तो हम उसको 8 से डिवाइड करते हैं जहां तक इंटीजर पार्ट चलता है। 12 8 is 96, 4 इज द रिमाइंडर, सो 4 रिमाइंडर हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। फिर 12 और 8 का डिवीजन होता है, 8 1 is 8 होल पार्ट चल रहा है और 4 इज द रिमाइंडर, ओके। एंड देन वी हैव 1 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम डायरेक्टली उसको रिमाइंडर पार्ट पे पुट कर देते हैं। सो हमारा नंबर बॉटम अप अप्रोच में लिखा जाता है, ठीक है। सो 144 नीचे से लेके ऊपर तक लिखा जाता है, सो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्टल नंबर। 100 का ऑक्टल 144 है कि नहीं चेक करते हैं, हमारे कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 100, ओके, और प्रिंट कर देते हैं ओ ऑक्टल। तो आई एम जस्ट पुटिंग ओ, आउटपुट को क्लोज करके न्यू प्रोग्राम रन करते हैं। नेम इज ए फॉर अ व्हाइल एंड देन 144, फाइन। सो इस तरीके से हम कोई भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसको 16 से डिवाइड करेंगे। विल जस्ट सी। सो जैसे कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देख रहे हैं, 2545 नाम का नंबर है, उसको 16 से डिवीजन स्टार्ट किया है। 16 into 159 करेंगे तो हमें जो भी नंबर मिलेगा 2544 मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रही है। फिर 16 in 159 डिवाइड बाई 16 करेंगे, ओके, तब 9 तक होल पार्ट चलेगा और हमें उसकी रिमाइंडर कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी, ओके। सो रिमाइंडर्स आर इम्पॉर्टेंट। और देन
16 इंटू 9, तो हमारा कोई पार्ट नहीं चलेगा, इसीलिए 9 को एज इट इज रखेंगे और अगेन बॉटम अप अप्रोच में लिखेंगे। सो 9 एंड 15। हेक्साडेसिमल में 15 को 15 नहीं लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको 10 से लेकर स्टार्ट करते हैं और ABCD के नोटेशन में लिखते हैं। 10 इज A, 11 इज B, सिमिलरली 15 इज F, और कहाँ तक जाता है, F तक जाता है। ओके, 10 इज A, 11 is B, then 12 is C, then 13 is D, 14 is E, 15 is F. ओके, 15 तक आता है, 0 to 15 तक नंबर होते हैं हेक्साडेसिमल में। 2545 नंबर का हेक्साडेसिमल नोटेशन चेक कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल को हम कैपिटल या स्मॉल x लिखेंगे और नंबर लिखेंगे 2545। क्लोज द प्रोग्राम एंड जस्ट क्विकली रन इट। इफ आई प्रेस A, 9F1, ओके, जैसे कि हम वहां पे देख रहे थे 9F1, सो इट इज करेक्ट। फाइन, सो जनरली शुड नो दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल कन्वर्जन्स, फाइन, एंड यू कैन प्रिंट इट सिंपली। सो अगर आपको परसेंटेज ओ या परसेंटेज एक्स यूज करना तो आप यूज कर सकते हैं, जो हमारे फॉर्मेट फ्लैग्स हैं उस तरीके से, फाइन, और गेट एस एंड पुट एस। सो आई थिंक वी हैव डन इनफ इन आवर मैनेजिंग आईओ चैप्टर। हमने बहुत सारे डिफरेंट आईओ ऑपरेशन एटसेट्रा देख लिए हैं ऑलरेडी, सो विल जस्ट कीप इट टू दिस फॉर दिस चैप्टर। We'll now start with managing arrays. Array क्या होता है? We have already seen this type of arrays. Character array हमने already देख लिया है. Array क्या होता है, कैसे create करते हैं? We'll just see that in our next lecture. Okay. So yeah, have a good day.